this is CVR English and it's time to roll the primetime news hour with me Anukriti Sharma. In a recent statement, former Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy has thoroughly criticized Chief Minister Chandrababu Naidu for allegedly trying to divert attention from pressing issues by raising concerns about the Tirumala Tirupati Devasthanam's Laddu Prasadam Rao. Jagan claimed that Naidu's assertion about animal fat being used in the laddu is unfounded and undermines the sanctity of Tirumala itself. He defended the ghee procurement process, describing it as routine and very well regulated, and noted that both the administrations had previously rejected the substandard ghee multiple times due to quality issues. ఇవన్నీ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు డిస్క్లైమర్స్ కింద రాసినారు. ఇదేదో ఖచ్చితమైన రిపోర్టా అంటే అది కాదు. మరి ఇవన్నీ తెలిసి చంద్రబాబు నాయుడు కావాలని అబద్ధాలాడుతూ తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి విశిష్టతను, ప్రసాదానికి సంబంధించిన పవిత్రతను దగ్గర ఉండి కావాలని అబద్ధాలు చెప్పి అనుమానపు బీజాలు ప్రసాదం పుచ్చుకునే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ లేపడం దుర్మార్గం కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా. అపవిత్రం కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా. నీ రాజకీయ స్వార్థం కోసం వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రతిష్టను దిగజారుస్తా ఉన్నావు. నీ రాజకీయ స్వార్థం కోసం వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదానికి సంబంధించిన విశిష్టతను దిగజారుస్తా ఉన్నావు. జరగనిది జరిగినట్టుగా, యానిమల్ ఫ్యాట్ తో తయారు చేసినట్టుగా ఒక అబద్ధాన్ని ప్రచారం చేస్తా ఉన్నాం. ధర్మమేనా అని అడుగుతా ఉన్నా. మరోవైపు ఇంకా ఇలా అబద్ధాలు రోజుకు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క అబద్ధాన్ని ప్రమోట్ చేస్తారు. ఈ మధ్యకాలంలోనే ఇంకొక అబద్ధాలను వీళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తూ నందిని బ్రాండ్ను కూడా వాడడం లేదని అంటాడు. కేఎంఎఫ్ పక్కన కర్ణాటక మిల్క్ ఫెడరేషన్ వారి నందిని బ్రాండ్ అని. నేను అడుగుతా ఉన్నా, 2015 నుంచి 2019 చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో 2015 నుంచి 2018 అక్టోబర్ దాకా నందిని బ్రాండ్ ఎందుకు లేదు? చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొనుగోలు చేసిన 6 నెలలకు ఒకసారి పిలిచిన టెండర్ల ప్రక్రియలో ఎందుకు లేదు? ఇవన్నీ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు డిస్క్లైమర్స్ కింద రాసినారు. ఇదేదో ఖచ్చితమైన రిపోర్టా అంటే అది కాదు. మరి ఇవన్నీ తెలిసి చంద్రబాబు An FIR has been registered against Karnataka Chief Minister Siddaramaiah, his wife, brother-in-law and others by the Mysuru Lokayukta in the high-profile Muda scam case. This FIR has been filed under various sections of the IPC Act including 351, 420, 340, IPC 09, 120B and several more. Take a look. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರೋದು ಯಾರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈದ ಮೇಲೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು FIR ಆಗಿ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಾಜಕೀಯ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರನ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹರಿಯಾಣ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಈಗ
ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರೋ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋ ಗೋದ್ರಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಅದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು ಆಗ ಗೋದ್ರಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ ರಾಜೀನಾಮೆ. Former Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy has provided a detailed explanation for postponing his Tirumala visit, urging media outlets to broadcast this information for public awareness. When asked about the Tirupati Laddu Prasadam issue, he characterized it as a serious matter, stating, and I quote him here, "It is worse than what we are perceiving right now," emphasizing the gravity of the situation. No, all what I am saying is, it's a detailed explanation what has been presented to you, and only specifically to you that I had addressed in English. So please be please be. I rather request you, please telecast the whole thing so that people at large, by and large, are aware of the facts. And that way, what will happen is you will be presenting them the facts, what everybody needs to know. I request that from you. Sir, but you do not express the same thing in English. Serious blasphemy, sir. No? Serious blasphemy, sir. That's exactly what I've been telling. It's worse than that. What is the justice you demand with the... What's your further plan of action, sir? I think, I've already explicitly explained everything during the course of that 15-minute or 20-minute of that whatever I had spoken in English. I request all of you to telecast that in total so that everybody understands these facts and they can be the judges for themselves rather than taking bits and pieces and not doing justice. What's your plan of action? Raghava, Vijay, మీ పేరేం పేరునా? శివప్రసాద్, పృథ్వీ, శ్రీను అన్న పేరు శంకర్ నారాయణ, రాఘవ is from ANI, Vijay Kumar from India Today. I gave a very detailed explanation. No, all what I am saying is, it's a detailed explanation what has been presented to you, and only specifically to you that I had addressed. Meanwhile, Prem Kumar Jain has accused Jagan Mohan Reddy of presenting a drama of lies during a press conference, asserting that the public is aware of his actions. He has criticized Reddy's leadership as demonic and claimed that his decision to visit the Tirupati temple after previously offending the Hindu beliefs reflects a mindset of dramebazi. Jain has demanded the harshest punishment possible for Reddy's perceived sins. प्रकार अभी जगन मोहन रेड्डी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ का पुलिंदा या कॉमेडी सर्कस का एक ड्रामा पेश किया। ये सारी जनता ने देखा है और सब जनता जानती है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में राक्षसी रूल चल रहा है। उनके 5 साल के शासनकाल को सारी जनता बता सकती है कि राक्षसी रूल क्या होता है, राक्षसी साम्राज्य क्या होता है, राक्षसी कार्रवाइयां क्या की गई थी। जिस प्रकार हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास को चोट करने के बाद तिरुपति मंदिर जाने का फैसला और बाद में उसको कैंसिल करने का फैसला करके जो ड्रामा उन्होंने किया है, वो उनकी मानसिकता, उनके सोच को दर्शाता है कि वो सब एक ड्रामेबाजी है। ये तिरुपति मंदिर की आस्था का सवाल है। उनके लिए जो उन्होंने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है। वो कितने भी क्षमा अनुष्ठान कर लें या ना करें, लेकिन ये जो उन्होंने पाप किया है, इसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये पब्लिक जानती है कि ये आज से नहीं, जिस समय वो सत्ता में आए थे 4 साल पहले, आंध्र प्रदेश में सारी जनता ने, सारे देश ने देखा था
कि किस प्रकार सैकड़ों मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को क्षति। Rashtriya Janata Dal MP Meesa Bharti has expressed her concern over Nitish Kumar's grip weakening on the government. She highlighted that the Rashtriya Janata Dal is actively raising law and order issues, bringing public incidents to light. Bharti further pointed out that while the past Rashtriya Janata Dal governance is often criticized, it is Kumar's current administration that is responsible for the situation, urging him to address these matters seriously. किया गया मांझी जी के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर क्या कहेंगे जाति की राजनीति को लेकर? देखिए, मांझी जी काफी सीनियर नेता है और अभी सिर्फ बिहार का नेतृत्व वो नहीं कर रहे हैं, पूरे मतलब अभी केंद्र में मंत्री हैं। और इस तरह का बयान मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत अगर राय मतलब मैं मीडिया के सामने रख रही हूँ, तो उनको ये इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। किसी भी जाति सूचक इस तरह से किसी की कोई इस जाति का है, इस जाति का नहीं है। अब मांझी जी के पास क्या प्रमाण है? अब तो या तो फिर जिस समाज के बारे में वो बोल रहे हैं, खासतौर पे लालू जी की जाति के बारे में बोल रहे हैं, तो इस जाति के या सभी लोगों को पूरे बिहार में जातीय प्रमाण पत्र मांझी जी से ही साइन करवाना पड़ेगा। बंसावली कर रहे हैं बनाने के, बंसावली ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं तो कह रही हूँ ना कि अभी पहले बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी मांझी जी की सरकार है और बिहार में भी मांझी जी की सरकार है, और अभी सेशन अभी आने वाला है। तो मांझी जी ये मोदी जी के सामने रख दें और सब हो जाए कि देश में भाई सबके वंशावली बने। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर दीदी क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार तेजस्वी जी भी बुलेटिन जारी कर रहे हैं, हत्याएं हो रही है बिहार में, पुल गिर रहे हैं, आज भी एक पुल गिरा है, उसको लेकर भी ट्वीट हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की सरकार पे पकड़ कमजोर पड़ गई है, और मीडिया के माध्यम से, और जब आप पब्लिक में जाते हैं तो तरह तरह के नामों की लोग चर्चा करते हैं कि आज फलाने सुपर सीएम है, ये सीएम है और वो सीएम और वो काम देख रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो एक मुद्दा है, आए दिन राष्ट्रीय जनता दल इसको उठा रहा है। तो जो जनता के साथ जो भी जिस तरह की घटनाएं घट रही है, उसको राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मीडिया के सामने रखने के और बिहार की जनता के सामने काम कर रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर, एक तरह से कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल की 20 साल पहले की जो सरकार थी, बार बार कोई अगर घटना घटती है तो उस पर आरोपित कर दिया जाता है। लेकिन सरकार में आप हैं, मिनिस्टर आप हैं, होम मिनिस्टर आप हैं, यहाँ पे आपके अंडर में है, ये सब चीजें देखनी चाहिए नीतीश कुमार जी को। आपकी पार्टी से एक नेता उधर गए हैं, श्याम रजक, विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं अपने ही पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? अभी तक मिला नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, नीतीश कुमार जी भी करते हैं, आए हैं। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में भी और केंद्र में भी। तो मुझे लगता है कि मांग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। ये जो सरकार बनी है उनको स्वतः पूरा कर देना चाहिए बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, और बिहार के भलाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेता अगर सोचते हैं बिहार का विकास हो और भला हो, तो इस तरह की मांग को बिना कहे स्वतः उनको पूरा करना चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रोहिणी जी भी ट्वीट कर रही हैं, तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, मैं ये महिला होने के नाते इसकी कड़ी निंदा करती हूँ कि इस तरह की घटना देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और कड़े कानून और तुरंत उनको पकड़ के उनको सजा मिलनी चाहिए। और कई एक बार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं एक दूसरे दल पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। ये इस तरह की चीज मीडिया में नहीं आनी चाहिए। इससे क्या कि जो लोग होते हैं उनका मनोबल काफी बढ़ता है। तो मेरा यही कहना है कि दलगत स्थिति से ऊपर उठ करके खासतौर पे महिलाओं के साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए, और इस तरह की घटना देश के किसी भी राज्य में, चाहे किसी की भी सरकार हो, नहीं घटनी चाहिए। आखिरी सवाल, सिलीगुड़ी में बिहार के स्टूडेंट को लेकर हरास किया गया है, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से देखिए, हम सब लोगों ने भी देखा कि वहाँ पे एक जो लोग 2 लोग गए थे उनके साथ एक घटना आई। हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखा, और उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने संज्ञान में लिया, और वहाँ पे उन्होंने बात की, और जो हमें जानकारी मिली कि उसकी कार्रवाई भी हुई है। तो मतलब किसी एक घटना को ऐसे उठा करके, लेकिन मैं बार बार यही कर रही हूँ, जैसे मैंने भी महिलाओं के लिए कहा, तो इस तरह की घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और
ममता बनर्जी ने इस पे एक्शन ली। कमेंट किया गया मांझी जी के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर, क्या कहेंगे? जाति की राजनीति को लेकर कमेंट हो रहा है। देखिए मांझी जी काफी Mohan Yadav has stated that they have secured leads for investments accounting to 5,000 crore rupees for Sagar, which he believes will create employment opportunities for an additional 10,000 people viewers. He emphasizes that the influx of investors will now open numerous avenues for professional development. कला, संस्कृति, वीरता, धीरता और प्रचुर दोनों तरह की भू संपदा को समेटे यह हमारा आदिकाल से विशेष पूरे देश में स्थान पाया क्षेत्र बुंदेलखंड। इस बुंदेलखंड के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान खजुराहो के माननीय यशस्वी सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ नेता अभी चले गए, यहाँ से अभी कोई दिख नहीं रहा, शायद गोपाल भार्गव जी यहीं आसपास ही कैंपस में है, हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय शैलेन जैन जी, हमारे मकरोनिया के सांसद विधायक माननीय प्रदीप लारिया जी, महापौर पर पहले सांसद जी है ना लता वानखेड़े जी, सागर की सांसद, दमोह के सांसद हमारे लोधी जी, राहुल भाई, इस अवसर पर मौजूद मंच पर ही विराजमान हमारे सारे वरिष्ठ मंत्रीगण भी यहाँ मौजूद है, भाई लखन पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री दिलीप जी, इस अवसर पर मंच के सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के बुंदेलखंड के अलग अलग माननीय विधायकगण, बीना से श्रीमती निर्मला सप्रे जी, विधायक श्री नितेंद्र सिंह राठौड़ जी, विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधायक श्री बबलू शुक्ला जी, विधायक अरविंद पटेरिया जी, विधायक अनिल जैन निवाड़ी विधायक जी, राम सिया भारती जी विधायक, श्रीमती उमा खटीक जी विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, वृंदावन अहिरवार जी, और सच मानो तो आज का हमारा इस इन्वेस्टर समिट का गौरव बढ़ा रहा है। ये केवल राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान बढ़ा है। हमारे इसी मंच पर मौजूद है थाईलैंड। In the Delhi Assembly today, Aam Aadmi Party MLA Arvind Kejriwal has shared that he has been inspecting Delhi's roads with the new Delhi Chief Minister Atishi over the past 2 days. He criticized the Bharatiya Janata Party for hindering regular road repairs, claiming that even basic maintenance was stopped after his incarceration. Kejriwal has now announced that he would be writing a letter to the new Chief Minister of Delhi Atishi regarding these issues. 2 दिन से मैं मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ दिल्ली की सड़कों का मुआयना करने के लिए निकला था। मेरे को याद है जेल जाने के पहले सड़कों की इतनी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन मुझे बताया गया कि इन लोगों ने जो रेगुलर रिपेयर होती है, रेगुलर मेंटेनेंस होती है, वो भी नहीं होने दी। तो अभी सड़कों की हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है दिल्ली की। तो अभी मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूं आतिशी जी को, जो कि चूंकि सबके से संबंधित है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रिय आतिशी जी, पिछले 2 दिन मैं आपके साथ दिल्ली की अलग अलग सड़कों का इंस्पेक्शन करने गया। इन सड़कों का काफी बुरा हाल है। मार्च महीने में जब मुझे गिरफ्तार किया गया था, तब दिल्ली की सड़कें ठीक थीं। अभी कुछ दिन पहले मुझे इनका एक बड़ा नेता मिला। मैंने उससे पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उन्हें क्या मिला, तो उसने मुस्कुरा के कहा
दिल्ली सरकार को हमने डिरेल कर दिया, दिल्ली को हमने ठप कर दिया। उसका जवाब सुन के मैं हैरान रह गया। तो क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या उनका मकसद दिल्ली वालों को परेशान करना था? जनता के परेशान होने से कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कैसे खुश हो सकते हैं? जाहिर है कि इनका मकसद था दिल्ली के काम रोक के आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, ताकि ये लोग दिल्ली के चुनाव जीत जाएं। कोई पार्टी वोट लेने की खातिर और चुनाव जीतने की खातिर इतना कैसे गिर सकती है कि 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहाल। Speaking in Delhi Assembly today, Aam Aadmi Party MLA Manish Sisodia has said that many cases were filed against Aam Aadmi Party MLAs by the BJP, but his party MLAs were acquitted in most of these cases. इन्होंने एक केस गोपाल राय जी के ऊपर लगाया 2012 का निकाल के, गोपाल राय जी उससे डिस्चार्ज हो गए हैं। ये कानून के राज की बात कर रहे हैं। ये 3 केस इन्होंने कैलाश गहलोत जी के ऊपर लगाए 2015 में, वो भी खत्म हो जाएंगे। ये कौन से कानून की राज की बात कर रहे हैं? नरेश बालियान जी हमारे एमएलए साहब हैं, उनके ऊपर अध्यक्ष महोदय इन्होंने 3 केस लगाए नरेश बालियान साहब के ऊपर। तीनों केसेस में नरेश भाई डिस्चार्ज होकर निकले हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। गुलाब सिंह यहीं बैठे हुए थे, अभी गुलाब भाई पीछे पहुंच गया। गुलाब भाई, इनके ऊपर 3 केसेस लगाए, तीनों में डिस्चार्ज होकर निकले। गुलाब सिंह जी तीनों केसेस में डिस्चार्ज होकर निकले। अमानतुल्लाह खान, उनके ऊपर इन्होंने 20 केस लगा रखे हैं, 17 में डिस्चार्ज हो चुके हैं वो, और बाकी 3 में भी डिस्चार्ज होंगे। विशेष रवि भाई करोल बाग से एमएलए, 1 केस लगाया, उसमें उनको एक्यूटल मिल चुका है। वंदना कुमारी बहन हमारी बैठी हैं, इनके ऊपर 6 एफआईआर की गई और 6 की 6 एफआईआर झूठी साबित हुई। इनके ऊपर जो लगी गई 6 एफआईआर की गई वंदना बहन के ऊपर। राखी बहन हमारी बैठी हैं, इनके ऊपर 3 केस लगाए गए, उनमें से 1 से एक्यूटल हो चुका है, 2 में से भी एक्यूटल होने वाली है, एक्यूटल होने वाला है इनका। आप अध्यक्ष की चेयर पे बैठे हैं, न्यूट्रल हैं, क्योंकि आप इस पार्टी के टिकट से जीते थे। इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा, आपके ऊपर भी इन्होंने 2 केस लगाए और उसमें भी एक्यूटल हो गया, आप लोगों ने लगाया। ऋतुराज झा 2 केस लगाए, दोनों में डिस्चार्ज हो चुके हैं ऋतुराज भाई हमारे। दिनेश मोहनिया 9 केस लगाए, 9 में से 8 में डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1 में अभी कॉग्निजेंस लेंगे तो उसमें भी डिस्चार्ज ही निकलेंगे। जर्नैल सिंह 2 केस लगाए, दोनों में डिस्चार्ज हो चुके हैं। संजीव झा 3 केस लगाए, 2 में डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 अभी बाकी है, उसमें भी डिस्चार्ज होंगे। ये बता रहे हैं कानून का राज है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे केसेस कौन से कानून में आते हैं? बीजेपी के झूठ बोलने के, झूठ फैलाने के और एजेंसियों को दुरुपयोग के अलावा किसी कानून में नहीं आते हैं। मुझको जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, हम तो स्कूल बनवा रहे थे, यहां बैठ के काम कर रहे थे। 30,000 करोड़ का बजट होता था। इसी विधानसभा में पहला बजट पास किया था 30,000 करोड़ का, और उससे पहला बजट जिस बार मैं वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया, उससे पहला बजट रिकॉर्ड है विधानसभा का, उठा के देख लीजिए, 25,000 करोड़ का बजट था। और उससे पहले के बजट जो थे वो कभी 24,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़। पिछले 5-7 साल हमारे आने से पहले देखेंगे तो 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ पहुंचने में 5-7 साल लगते थे बजट को, लेकिन केवल 5 साल के अंदर अंदर 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। अगर बेईमानी करनी होती तो उसमें से अगर 0.001% कर देते, मेरी पार्टी के कई साल के लिए फंड इकट्ठा हो जाता अध्यक्ष महोदय, लेकिन नहीं करनी थी। इसीलिए 30,000 करोड़ का जो बजट था वो धीरे धीरे करके, ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन करके, ईमानदारी से नीतियां बनाकर, ईमानदारी से खर्च करके उसको किया, तब 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा। ये एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, हम कानून का सदुपयोग करते हैं, हम अपनी दी गई पावर का सदुपयोग करते हैं, इसलिए 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए हो गया और झूठे आरोप लगाते हैं। फिर State Congress Committee Chief Pratibha Singh has responded to HP Minister Vikramaditya Singh's comments regarding eateries displaying the owners' names, stating that there was no intention to create any controversy.
She noted that a committee has been formed consisting of senior members to determine the appropriate actions to take, with decisions pending further instructions from the party's high command. Singh further emphasized that the committee includes representatives from the opposition and assured that they will proceed collaboratively after consulting all the parties involved. ये अब उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है, गठित कर दी है, जिसमें वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग फैसला लेंगे और वो लोग इस पे आगामी हमने क्या कार्रवाई करनी है और लीगली हमको साउंड रहते हुए इस पर अगला फैसला जो करना है वो पार्टी हाईकमांड के निर्देश के मुताबिक किया जाएगा। लेकिन जो सरकार समिति बना उसमें विपक्ष के भी लोग हैं, ठीक है, सभी से सलाह मशवरा करके सभी की सहमति लेकर हम आगे बढ़ेंगे और तभी फैसला लेंगे। कांग्रेस की सरकार है, वो निर्णय करेगी। अब उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है, गठित कर दी है, जिसमें वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग फैसला लेंगे और वो लोग इस पे आगामी हमने क्या कार्रवाई करनी है और लीगली हमको साउंड रहते हुए इस पर अगला फैसला जो करना है वो पार्टी हाईकमांड के निर्देश के मुताबिक किया जाएगा। लेकिन जो सरकार समिति बना उसमें विपक्ष के भी लोग हैं, ठीक है, सभी से सलाह मशवरा करके सभी की सहमति लेकर हम आगे बढ़ेंगे और तभी फैसला लेंगे। सहमति लेकर हम आगे को साउंड रहते हुए इस पर बना दी है, गठित कर दी है, जिसमें वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग फैसला लेंगे और वो लोग इस पे आगामी हमने क्या कार्रवाई करनी है और लीगली हमको साउंड रहते हुए इस पर अगला फैसला जो करना है वो पार्टी हाईकमांड के निर्देश के मुताबिक किया जाएगा। लेकिन जो सरकार समिति बना उसमें लीगल पार्टी हाईकमांड के निर्देश के मुताबिक किया जाएगा। लेकिन जो सरकार समिति और लीगली हमको साउंड रहते हुए इस पर अगला। Rajasthan Deputy Chief Minister Diya Kumari has visited the Devsar village in Bhiwani. Her visit aimed to engage with local residents and address their concerns, emphasizing the government's commitment to rural development and community welfare. देवसर आई हूँ विधानसभा चुनाव के प्रचार में और घनश्याम जी सराफ जी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, जो पहले विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनके प्रचार के लिए और सभी से अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से हर एक कैंडिडेट को जिताएं, साफ सुथरी सरकार बनाए, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाई, जो ऐसी सरकार जिसने युवाओं को रोजगार दिया है, जिसने महिलाओं को सुरक्षा दी है, विकास भरपूर किया है, ऐसी सरकार को तीसरी बार चुनने का काम है। आज मैं देवसर आई हूँ विधानसभा चुनाव के प्रचार में और घनश्याम जी सराफ जी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, जो पहले विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनके प्रचार के लिए और सभी से अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से हर एक कैंडिडेट को जिताएं, साफ सुथरी सरकार बनाए, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाई, जो ऐसी सरकार जिसने युवाओं को रोजगार दिया है, जिसने महिलाओं को सुरक्षा दी है, विकास भरपूर किया है, ऐसी सरकार को तीसरी बार चुनने का काम है। आज मैं देवसर। Well, viewers, that brings me to the close of this special edition of Primetime News Hour with me, Anukriti Sharma. Keep watching CVR English for more news and updates.